Good morning, students. Today we will start with the next chapter of our SCC, that is sericulture, and the name of the chapter is rearing of the silkworm. Before this, we have completed 3 chapters. The first chapter, which is introduction to sericulture, the second chapter, which was biology of the silkworm, and the third chapter, which was the pest and diseases of the silkworm. Now, in this chapter, we will learn the different techniques which are used for the rearing and caring of the silkworm, and different appliances and different methods with the help of which the proper rearing and caring of the silkworms and the mulberry plants, which is the main host of the silkworm, is carried out. So first under this category is the selection of the mulberry variety. In this book we will mainly focus on the mulberry, silkworm or the Bombyx mori. Why? Because it is the main source of the silk in India. So here we will take the host plant, which is the mulberry. So in case of the mulberry plant, which belong to the family Moraceae, we have to select a proper species of Moraceae family, the mulberry plants which are good and which form a better host for the silkworms. So there are many varieties such as Morus alba, Morus indica, Morus serrata. These are grown in the wild areas of Himalayas. Otherwise, many of the other species are also there of the mulberry plant. Thousands of new varieties are there, but we will take only those varieties which are better suited to our Indian climate. And other species are also, these are the indigenous species, means they belong to India, whereas some species have been introduced from the different countries into India, such as mulberry, that is your Morus multicaulis, Morus nigra, and many other species are also there. But the most common species which is used in India is the Morus indica, which we commonly called as the Shahdud. Now, what are the different conditions for the selection of mulberry variety? So we have to take the mulberry variety which have the more leaf yield. जिसकी leaf yield ज़्यादा होगी हम उसी को select करेंगे, such as this M5 variety that yields more yield, approximately 25% leaves जो है वो ज़्यादा ये plant हमें देगा as comparison to the other plants. कोई भी आपकी mulberry की varieties होंगी, उनकी प्रॉपर रेजिंग तभी होंगी इफ यू टेक अ हाई फर्टिलिटी सॉइल. अगर आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बेटर है तभी हमें कोई भी मलबरी प्लांट होगा उसकी हमें अच्छे से यील्ड मिलेगी. नेक्स्ट इज द वैरायटी विच इज लाइक दैट शुड रिस्पॉन्ड वेल टू द मैन्योर, अच्छे से मैन्योर को रिस्पॉन्स करे, एंड द वैरायटी दैट शुड रिस्पॉन्ड वेल टू द पीएच. जैसा आपका सॉइल का पीएच है, चाहे आपकी सॉइल का पीएच एसिडिक है, चाहे आपका सॉइल का पीएच जो है वो न्यूट्रल है या अल्कलाइन है, अकॉर्डिंग टू द सॉइल, जिस एरिया में आप जो है वो मलबरी गार्डन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वहां पर पीएच के अकॉर्डिंगली आपने जो है प्लांट्स को सिलेक्ट करना है. सच एज दिस AR12, दिस वैरायटी ऑफ द मलबरी प्लांट दैट इज गुड फॉर द अल्कलाइन सॉइल. नाउ द varieties which we select should also grow better in the irrigated condition and also in the dry condition. The leaf quality obtained from that plant should be very good, and it should have the leaves which we obtain that should have a high nutritive values. ठीक है, क्योंकि अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तभी हमारे जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी. नाउ कमिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मलबरी गार्डन्स. अब आपने मलबरी गार्डन्स की एस्टेब्लिशमेंट कैसे करनी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल the condition which we will consider is the soil and the climate. So we have to select proper climate in which we will establish our mulberry garden, and we should also take care of the soil, that what is the nature of the soil, whether it is alkaline or acidic or neutral, so that we can grow the mulberry variety which is best suited to that particular pH of the soil. So if we talk about the topography of the soil, the mulberry plants that grow in all type of the land except very steep. जो बहुत steep lands होंगे, obviously जो बहुत steep lands होंगे वहां पे जब हम irrigation करते हैं तो पानी एकदम से flow कर जाता है. So that's why very steep lands are not preferred for the mulberry gardens. But the areas which are either flat or gently sloping, they are preferred for the establishment of the mulberry garden.
ठीक है। नेक्स्ट इज द सॉइल, जो सॉइल अच्छे से जिसमें कि मलबरी प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, दैट इज लोमी टू द क्ले लोमी सॉइल। ठीक है, तो ये अगर सॉइल्स होंगे तो आपका मलबरी गार्डन की स्टेब्लिशमेंट अच्छे से होगी। द मलबरी प्लांट दैट कैन ऑल्सो टॉलरेट एसिडिक कंडीशन, सो we can also grow the plants in the acidic condition, but the too acidic condition is not appropriate। ठीक है, तो हम जब ग्रो करेंगे तो हमें थोड़ा सा पीएच का जो है वो ध्यान रखना है, और अगर उसका जो पीएच है वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इफ वी हैव द अल्कलाइन सॉइल देन वी कैन मेक इट अप्रोप्रिएट बाय द एप्लीकेशन ऑफ द जिप्सम। नाउ द नेक्स्ट is the land preparation, that how the land should be prepared for the cultivation of the mulberry। You all know, हमने कोई भी गार्डन लगाना है, किसी भी तरह की क्रॉप लगानी है, सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से डीप प्लोइंग करनी होती है, एंड द प्लोइंग शुड बी अप टू 30 to 45 सेंटीमीटर। जब हम डीप प्लोइंग करते हैं उससे क्या होता है, जो आपकी जो सॉइल होती है वो प्रॉपरली लूज हो जाती है और प्रॉपर एरिगेशन हो जाती है। जब प्रॉपर एरिगेशन सॉइल की होगी तो उसमें जब आप सीडलिंग्स लगाते हैं या प्लांटेट्स लगाते हैं तो उसके रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और वो एकदम से रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर एस्टैब्लिश हो जाते हैं। सो देयर शुड बी वेरी द इम्पॉर्टेंट स्टेप, दिस प्लोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्लांट्स। हम घर में जब गार्डन में भी जब प्लांट्स लगाते हैं तो हम अच्छे से पहले उस एरिया को, या हमारा जो फ्लावर पॉट है उसमें जो सॉइल है उसको अच्छे से हम उसको जो है वो लूजन कर लेते हैं, ताकि प्लांट जो है वो इजिली उसमें एस्टैब्लिश हो जाए। सो दिस इज अ वेरी easy and very important step for the establishment of any kind of the garden. Now the second step is the removal of the weeds and the stones. If there are number of weeds and stones in the field, then there will be many difficulties in establishment of the garden। ठीक है, तो proper weeds आपने हटाने हैं और stones भी जो है वो field से हटाने हैं। We should apply the farmyard manure। फार्मयार्ड मैन्योर के बिना जो है वो कोई भी गार्डन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सो वी हैव टू एस्टेब्लिश द फार्मयार्ड मैन्योर दैट इज एट द रेट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 20 tons per hectare। नाउ वी शुड अवॉइड द लैंड्स अलोंग द हाईवेज के पास की लैंड या फैक्ट्रीज के आसपास की लैंड जो है वो हमें गार्डन के लिए सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि हाईवेज के लैंड जो है आसपास वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, और फिर पॉल्यूशन अगर वहां पे ज्यादा होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। और ऐसे ही अगर फैक्ट्रीज नजदीक में है तो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो प्लांट्स की गार्डन्स की ओर आ सकता है, इसलिए हमें फैक्ट्रीज के आसपास का एरिया भी जो है वो सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज दी प्लांटिंग मटेरियल इन दी मलबरी कल्टिवेशन। ठीक है, अब हमने कैसा प्लांटिंग मटेरियल जो है वो कलेक्ट करना है। द प्लांटिंग मटेरियल इज यूजली टेकन एज कटिंग। ठीक है, कटिंग के फॉर्म में हम प्लांटलेट्स जो है वो लेते हैं और उसको प्रॉपरली मैन्योर करते हैं अप टू 6 to 8 months। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम देन दिस प्लांट्स मटेरियल दैट इज टेकन बाय द सैपलिंग, बट कटिंग्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ग्रो बेटर एंड दे गेट बेटर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो वैसे तो छोटे छोटे सैपलिंग्स मीन्स छोटे प्लांट्स, जैसे कि आपने मलबरी प्लांट है तो उसका जो छोटा ट्री है उसको हम बोलेंगे सैपलिंग, वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन जो कटिंग्स होती हैं, आप यू ऑल नो व्हाट इज कटिंग, जैसे कि हम रोज की कटिंग्स लगाते हैं वैसे कटिंग्स इसकी भी हमें मिल जाती है, मलबरी प्लांट्स की मिल जाती है। सो वी प्रेफर कटिंग रादर देन सैपलिंग बिकॉज दे गेट बेटर एस्टैब्लिश एंड ऑल्सो क्विकली एस्टैब्लिश। सो दैट इज अप टू यू कि आप सैपलिंग प्रेफर करेंगे यानी कि स्मॉल प्लांट्स लेंगे मलबरी के, या उसकी कटिंग लेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है, बट these are better। Now the cuttings हैं that should have a height of the 15 to 20 centimeter and that should have at least 3 to 4 healthy buds। ठीक है, अगर उसके ऊपर ज्यादा buds होंगे तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट के चांसेस जो है वो ज्यादा है। और हमारी कटिंग जो है वो हमेशा ही कब करनी है, रेनी सीजन में। दिस इज वेरी मच क्लियर टू अस कि किसी भी तरह के प्लांटेट्स की जो कटिंग अगर रेनी सीजन में करते हैं तो उसके एस्टेब्लिशमेंट के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एंड द सॉइल इज ऑल्सो वेल मॉइस्चर्ड इन द रेनी सीजन। नाउ रेजिंग ऑफ द सैपलिंग। अब हमने क्या किया, या हमने सैपलिंग सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फील्ड को तैयार किया, उसकी प्रॉपर प्लोइंग की। उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्लांटिंग मटेरियल को सिलेक्ट किया कि हमने कौन सा प्लांटिंग मटेरियल लेना है, हमने सैपलिंग लेनी है या हमने कटिंग्स लेनी है। उसके बाद हमने इस सैपलिंग या कटिंग को जो है वो हमने एक फील्ड में एस्टैब्लिश कर देना है। ठीक है, सो जो सबसे पहला फील्ड जिसमें हम इसे एस्टैब्लिश करेंगे दैट इज कॉल्ड एज दी नर्सरी बेड्स। ठीक है, सो नर्सरी बेड्स इज द फर्स्ट और द प्राइमरी
field in which we will establish our sapling. So this is given the diameter, the dimensions of the field जो आप field यूज करेंगे, और आप उसमें भी प्रॉपर जो है वो प्लोइंग करेंगे, आप डिगिंग करेंगे अप टू द डेप्थ ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर, जिससे कि प्रॉपर हमारी जो है एरिएशन हो जाए. साथ ही में हम अप्लाई करेंगे FYM. FYM इज व्हाट? इट इज फार्म यार्ड मैन्योर. ये मैन्योर हम अप्लाई करेंगे and approximately 50 kg of the manure is applied in the soil. Now the nursery beds, जो हम nursery beds हैं जिनमें हम plantlets लगाएंगे या जिसमें हम saplings लगाएंगे, the plants should be established at the spacing of 15 by 10 सेंटीमीटर. तो प्रॉपर स्पेसिंग हमें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देंगे तो प्लांट्स में जो है वो कंपटीशन हो जाएगा फॉर द फूड एंड फॉर द मैन्योर, फॉर द सनलाइट, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रोथ जो है वो प्लांटलेट्स की नहीं होती है. सो वी शुड टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ द स्पेसिंग. द प्लांट्स दैट शुड बी एस्टैब्लिश इन प्रॉपर स्पेस एंड द प्रॉपर एरिया. नाउ नेक्स्ट इज द इरिगेशन. इरिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप प्रॉपरली पानी नहीं देते हैं तो प्लांटलेट्स जो है वो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी. सो यू शुड irrigate the plantlets twice a week. Then is the fertilizer. हम fertilizer अप्लाई करते हैं. fertilizer जो अप्लाई करेंगे that is normal fertilizer, जो हमारे घरों में भी या हमने देखा होगा गांव में लोग यूज करते हैं NPK, that is nitrogen, phosphorus, potassium fertilizer is commonly used and the ratio of these all the elements is 25 by 25 by 25. तो आपने 5 to 6 वीक्स के बाद जो है ये प्लांटलेट्स में इसकी स्प्राउट्स आपने इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा डालना है, जिससे कि रूट सिस्टम जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द मलबरी सैपलिंग्स विच आर बीइंग ग्रोन इन द नर्सरी बेड्स. नाउ सैपलिंग्स हमने ग्रो कर लिए, उनका साइज एप्रोप्रिएट हो गया. अब हमने ये सैपलिंग्स को उठा के कहां पे डालना है? गार्डन में. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अभी आपने पीछे रेनी सीजन में देखा होगा कि हमारे जो राइस है किस तरह से उसको लगाते हैं. राइस को पहले हम उसको नर्सरी बेड्स में लगा लेते हैं. राइस के प्लांटलेट्स को, छोटे छोटे प्लांटलेट्स को जो है वो नर्सरी बेड्स में तैयार होने देते हैं. जब वो उसकी एप्रोप्रिएट हाइट हो जाती है तो उसको हम मेन फील्ड में एस्टैब्लिश करते हैं. तो उसी तरह से यहां पर भी हमने क्या किया, पहले हमने छोटे छोटे नर्सरी बेड्स बनाए हैं, उसमें प्लांटलेट्स की या सैपलिंग्स की प्रॉपर ग्रोथ होने दी है. उसके बाद ग्रोथ के बाद हमने उसको जो है वो मेन गार्डन में एस्टैब्लिश करना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज द प्लांटिंग ऑफ द सैपलिंग इन द मेन गार्डन और द मलबरी गार्डन. तो सैपलिंग की जब लाइफ है वो 80 to 90 डेज की हो जाएगी, तब आपने उसको जो है शिफ्ट करना है आपने मलबरी गार्डन के लिए. ठीक है, अब जब हम उसकी अपरूटिंग करेंगे, जब हम निकालेंगे उसको, तो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इन प्लांट्स को अपरूट करते वक्त, निकालते वक्त अगर इसकी रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो फिर इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रॉपर जो हमारा मलबरी गार्डन है उसमें प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. ठीक है, और जब हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे तो हमने स्पेसिंग का, अगेन स्पेसिंग दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमें स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है. हमने जो प्लांटलेट्स नर्सरी से उठाए हैं, जब उनको गार्डन में एस्टैब्लिश करेंगे तो हमने स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है. इन वेरी हैवी सॉइल्स, जो बहुत हैवी सॉइल्स हैं जैसे कि आपकी ब्लैक सॉइल्स हैं, वी कैन एस्टैब्लिश अप्रोक्सीमेटली 12,345 सैपलिंग्स पर हेक्टेयर with the spacing of 90 by 90 सेंटीमीटर. और अगर आपका स्लोपी हिली एरिया है then you can establish approximately 13,888 saplings per hectare. और इनके बीच में स्पेसिंग कितनी रहेगी? 120 by 60. तो ये थोड़ा सा आपने इसको ध्यान में रखना है कि कौन से एरिया में कितने सैपलिंग्स लगाने हैं और उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज द मलबरी प्लांटेशन इज डन इन द मंथ ऑफ द जनवरी, दिसंबर, जनवरी और द जुलाई. ठीक है, लेकिन हमेशा ही हम रेनी सीजन को प्रेफर करते हैं. रेनी सीजन को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उसमें प्लांट्स का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इजिली हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द प्लांटिंग ऑफ द सैपलिंग. अब प्लांटिंग करने के लिए सैपलिंग्स को आप क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई करते हैं, जैसे कि पिट सिस्टम. पिट सिस्टम मीन्स आप पिट्स लगा देंगे. अब बड़ा प्लांट है ये, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इसको पहले पिट बना देंगे और उस पिट में जो है वो आपने फिर थोड़ा सा आप मैन्योर डाल देंगे और मैन्योर के बाद फिर आपने प्लांट्स को जो है वो एस्टैब्लिश करना है. अब
जो प्लांटेशन है वो 2 टाइप से होती है, एक होती है सिंगल रो प्लांटेशन एंड नेक्स्ट इज द मल्टीपल रो प्लांटेशन। सिंगल रो प्लांटेशन मीन्स आपने की ये फील्ड है और उस फील्ड में सिंगल रो में प्लांट्स लगाने हैं। दैट मीन्स कि इसके जो सर्कमफ्रेंस है, जो आउटर एरिया है, वहां पर ही आप फील्ड्स में जो है वो प्लांट्स लगाएंगे। सो इन दिस केस वी कैन एस्टेब्लिश अप्रोक्सीमेटली 400 प्लांट्स इन द बाउंड्री। तो इसमें क्या होगा, ये वो वाला गार्डन है जिसमें बीच में आप कोई और क्रॉप जो है वो लगा सकते हैं और इसके साइड पे जो है वो मलबरी प्लांट्स लगा सकते हैं। सो दिस इज द सिंगल रो प्लांटेशन। What is multiple row plantation? This is the multiple row plantation. That means you will grow the plants in the multiple rows with the spacing of 1 meter. Here also the spacing is 1 meter. Now next is the weekly irrigation. Obviously जब आपने प्लांट्स एस्टेब्लिश कर दिए तो अगर आप उसको प्रॉपर इरिगेशन उसकी नहीं करेंगे, प्रॉपर पानी नहीं देंगे, तो हमारे प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज दी वीड ग्रोथ। जो वीड्स हैं उनको हमने टाइम टू टाइम हटाते रहना है। अगर आप टाइम से टाइम वीड्स को नहीं हटाएंगे तो वीड्स जो है वो प्रॉपर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। ठीक है, और वीड्स को हमने इस तरह से हटाना है ताकि उसके रूट्स भी जो है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि अगर रूट्स वीड्स के नहीं निकले होते तो दोबारा से जो वीड्स है वो उसमें से एकदम से ग्रो कर जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक मैन्योर। We should also use the different organic or the compact animal manure, because this organic manure that is also very helpful in the growth of the plants. So आपने मैन्योरिंग कब करनी है? इन द मंथ ऑफ द दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो हमारा नेचुरल जो आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो अवेलेबल है दैट इज द NPK, इसको भी आपने जो है वो यूज करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर के बाद आपने सेकेंड ईयर में भी जो है इसको यूज करना है। तो यहाँ पे रेशो दिखाई है आपकी कि फर्स्ट ईयर में इसका रेशो क्या होना चाहिए, सेकेंड में कैसे होना चाहिए, इसका रेशो कैसा होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रूनिंग और द लीफ हार्वेस्ट एंड द थिनिंग। अब हमने क्या करना है, हमारे लीव्स जो है वो अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं, हमारे प्लांटलेट्स जो है उसमें अच्छे से लीव आ गए हैं, तो अब हमने उनकी प्रूनिंग या उसमें से लीव्स को जो है वो ले लेना है, उनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है एंड वी कैन यूज देम फॉर आवर mulberry feeding. So the first time when you will get the leaves, when the plantlets they attain a height of 20 to 25 सेंटीमीटर। आपने पहली बार तब लीव्स लेने हैं जब प्लांटलेट्स की हाइट कम से कम 20-25 सेंटीमीटर हो जाए। सेकेंड प्रूनिंग कब करनी है? व्हेन दे अटेन अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, एंड देन द नेक्स्ट pruning that should be carried on when the plantlets they attain a height of 60 to 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जब आपके 4 to 5 years हो जाएंगे, तब 4 to 5 years के बाद जो है वो आपका मलबरी प्लांट्स दैट इज नाउ रेडी फॉर द रियरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म। ठीक है, तो शुरू में थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करके आप उसके प्लांटलेट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्ट प्लांट्स जो आपके शुरू के जो प्लांट्स हैं इनके जो सॉफ्ट लीव्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द रियरिंग ऑफ द अर्ली इंस्टार्स। जो शुरू के हमारे 5 इंस्टार्स होते हैं ना, जो अर्थ ये आपका जो सिल्क वॉर्म है उसके लाइफ में 5 इंस्टार्स होते हैं, तो जो शुरू के इंस्टार्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और उनको बहुत सॉफ्ट लीव्स हमें एज अ फूड देने होते हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। जबकि जब 4 to 5 years की प्लांटेशन हो जाएगी तो आपका ये प्लांट जो है प्रॉपरली इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द रियरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म। Now next is the rearing house and the various rearing appliances. Now the rearing house जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस तरह का rearing house बनाना है जहां पे हमारे जो सिल्क वॉर्म है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। Now the chalky worms कौन से वॉर्म है? जो हमारे फर्स्ट 2 इंस्टार है। As I have told you earlier that in the life history of the silkworm there are 5 इंस्टार्स। 5 इंस्टार्स होते हैं। 5 इंस्टार्स के बाद जो है वो आपका जो लार्वा है दैट गोज इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ दैट इज द प्यूपल स्टेज। तो जो शुरू के 2 इंस्टार्स हैं दे आर द यंग वंस एंड वेरी डेलिकेट एंड द सेंसिटिव worms which are very much susceptible to the different types of the infections, और उनको हमें टेम्परेचर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनकी ग्रोथ के लिए। तो ये वाले जो यंग वॉर्म्स हैं दैट इज अप टू 2 इंस्टार आर कॉल्ड एज द चॉकी। तो जिस चॉकी वॉर्म्स कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। सो चॉकी वॉर्म्स आर व्हाट? द वॉर्म्स अप टू द स्टेज ऑफ द 1 and 2 इंस्टार।
ये जो इंस्टार है इसका हमने बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये इनको जल्दी से इन्फेक्शन कैच कर जाएगा और ये जो है हमें फिर बहुत सारा जो है वो लॉस हो सकता है। नाउ द आइडियल कंडीशन फॉर द रेयरिंग हाउस, जो रेयरिंग हाउस है उसका साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दैट शुड हैव अ प्रॉपर एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 स्क्वायर मीटर। आपका इतना स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, जिसमें कि अगर आपका 400 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसमें आप 100 DFL मीन्स दी डिजीज फ्री लेइंग, 1 DFL इक्वल्स टू 500 लार्वे। ठीक है, तो आपके 100 DLF मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो उतने आप वर्म्स जो हैं वो हमारे ग्रो करने के लिए, उनकी रेयरिंग के लिए हमें 400 स्क्वायर फीट का एरिया हमें चाहिए। द नेक्स्ट इज दी एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे मैंने पहले बताया, जो हमारे चौकी वर्म्स हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, टेम्परेचर का भी, ह्यूमिडिटी का भी, बाकी वर्म्स के लिए भी रखना होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे चौकी वर्म्स यानी कि हमारे अर्ली वर्म्स हैं वो बहुत सेंसिटिव है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। सो फॉर दी अप टू 3rd इंस्टार आपको 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद 4 इंस्टार के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। देन ऑल्सो फॉर द 5th इंस्टार आपको 24 डिग्री हमें टेम्परेचर चाहिए। ऐसे ही हम ह्यूमिडिटी की बात करें, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 70 to 85% इज रिक्वायर्ड फॉर द अप टू 3rd इंस्टार स्टेज, एंड for the 4th and 5th we have to maintain a humidity of the 70%. So humidity as well as temperature both have to be regulated properly for the proper growth of the silkworms. And we should also take care of the cooling अगर अच्छे से होगी, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो आपका इसका एडवर्स इफेक्ट रहता है हमारे सिल्क वॉर्म्स के ऊपर। तो हमें प्रॉपर हमारी जो रूफ है, जिससे हम हमारा रेयरिंग हाउस है उसकी रूफ जो है वो प्रॉपर हमारी अच्छे से रूफ होनी चाहिए, जिससे कि जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होती रहे। ऐसे हमारी जो बिल्डिंग है उसमें भी हमारा उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए, ताकि वहां पर एयर का फ्लो जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहे। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन मेथड की और उसका डिजाइन के ऊपर भी ध्यान देना है। मींस उसमें खूब सारे, दिस इज द डायग्राम गिवन इन योर बुक रेयरिंग हाउस। सो दिस हैव दी, लुक एट दिस, हैव अ नंबर ऑफ विंडोज, बहुत सारे इसके विंडोज हैं, और विंडोज ऊपर की ओर है, नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नीचे की ओर विंडोज होंगे तो यहाँ से इसके पेस्ट और पैरासाइट्स जो है, पेस्ट और प्रेडेटर्स जो है वो एंटर कर जाएंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और ये जो है वो बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड होना चाहिए। अब इसकी रूफ देखो किस तरह से बनी हुई है, आपकी हस्क से बनी हुई है, तो इस तरह की रूफ जो होती है उसमें अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कभी भी गर्म नहीं होता है। ठीक है, जो पहले लोगों के घर होते थे, हमारे मड के जो हट्स होते थे, लगभग उसी तरह का जो ये आपका रेयरिंग हाउस है उसी तरह से बना होता है। नेक्स्ट इज दी इनफ स्पेस। हमारा प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो होनी चाहिए आपके रेयरिंग हाउस में। और ये जो रेयरिंग हाउस है इसमें जो इसके विंडोज हैं, विंडोज के ऊपर आपके नाइलॉन नेट्स होने चाहिए। अगर नेट्स नहीं होंगे तो ऊजी फ्लाई is one of the pest of the silkworm, so it will easily enter and it will cause a heavy destruction to our rearing. हमारे जो रेयरिंग हो रही है अंदर सिल्कवॉर्म की, उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, और हमें जो है प्रॉपर नेट्स और प्रॉपर वेंटिलेशन दोनों का ही प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी शुड हैव प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ द रेयरिंग हाउस। हमें प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने हैं ताकि इसमें कोई भी जो है वो डिजीज जो है वो हमारे वर्म्स के ऊपर अटैक ना कर सके। और हमें क्लीनिंग भी करते रहना। अगर आप इसको प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे आपकी रेयरिंग हाउस की, इसमें जो भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं, तो हमारे वर्म्स जो है वो एकदम से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कई बार जो हमारे इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे भी जो है वो वर्म इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नाउ वी विल यूज डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स फॉर द removal of the different pests and the parasites from this house. Now the different disinfectants used are the 5% bleaching powder. Next is the 2.5% Sanitec. Sanitec is what? It is the chlorine dioxide. ठीक है, तो ये कुछ एक डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो हमने यूज करने हैं। डिसइंफेक्टेंट्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है 4 या 5 मार्क्स का, तो ये आपको आगे अभी करवाते हैं हम। व्हाट आर द डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स विच आर यूज्ड। तो द नेक्स्ट इज दी वेंटिलेशन। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर वेंटिलेशन नहीं आप अच्छे से रखेंगे तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा बहुत ज्यादा आपका रेयरिंग हाउस का, एंड दैट वुड बी हार्मफुल फॉर आवर
our silkworms. Next is the rearing appliances. The various rearing appliances, ये सारे के सारे जो steps हैं rearing appliances और the disinfectants, ये बाद में आप चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, but this is just an introduction. Now what are the different rearing appliances? We should have the rearing racks. Rearing racks जिसके ऊपर आपने अपना, ये रैक्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हमारी बुक शेल्फ्स होती हैं, उस तरह से rearing racks होते हैं. वो बैम्बू के या कई बार पीवीसी या और चीजों से बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर बैम्बू से बने हुए रैक्स यूज होते हैं. और उसके ऊपर आपके मलबरी लीव्स लगाए होते हैं और उनके ऊपर फिर मलबरी लीव्स का बेड बनाया होता है और उसके ऊपर आपके वर्म्स को रखा जाता है. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द caring and rearing of the silkworms. Next is the mountain ages or the chandrikas. Now mountain ages and chandrikas, इसके ऊपर के भी अलग से क्वेश्चन आता है, तो ये डिटेल में बाद में आएगा आपको. तो ये mountain ages और chandrikas are those apparatus which are meant for the pupation, जहां पर आपका जो लार्वा है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, प्यूपा स्टेज में जाएगा और वहां पर आप उसके कुकून ऑब्टेन करेंगे. तो ये वो आपके ऑपरेटर्स हैं जहां से आप कुकून्स जो है वो हार्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज दी पावर स्प्रेयर. आपके पास पावर स्प्रेयर भी होना चाहिए. यू शुड ऑल्सो हैव अ हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर इज अपरेटस विच इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी. ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जैसे कि नॉन रिकरिंग और द रिकरिंग अप्लायंसेज हैं. ठीक है, कुछ जनरल हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं. तो ये कुछ अप्लायंसेज जो है ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ द ग्रोइंग ट्रीज, जो ट्रीज हैं वो आपके दैट शुड बी नियर टू द रेयरिंग हाउस. अगर रेयरिंग हाउस से बहुत दूर आपके ट्रीज होंगे और उनमें मॉइस्चर और जो आप उनसे लीव्स ऑब्टेन करेंगे, अगर उसमें मॉइस्चर का कंटेंट कम हो गया तो भी वो जो सिल्क वॉर्म्स है उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. तो जो आपके ट्रीज, जो आपका एक्चुअली जो मलबरी रेयरिंग आपके हाउसेज हैं, दैट शुड बी नियर टू द मलबरी गार्डन. Now next is the disinfectants used in sericulture. This is important question that and most of the time it is being asked for the 4 or the 5 marks. Now what is the need of the disinfectants? Disinfectants क्या है? Disinfectants अगर आप यूज नहीं करेंगे तो हमारे सिल्क वॉर्म्स जो हैं उनमें बहुत सारे डिजीज लग सकती हैं, उनको बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं एंड दैट विल रिजल्ट इन अ हाई मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, तो ये मैंने बहुत शुरू में भी आपको बताया था कि जो आपकी बायोवोलेटाइल या यूनिवोलेटाइल जो सिल्क वॉर्म की स्पीशीज होते हैं, they are more susceptible to the different types of the diseases rather than the multivolatile species. तो हम multivolatile species को प्रेफर करते हैं हमेशा, लेकिन कई एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे बाइवोलेटाइल या यूनिवोलेटाइल सिल्क वॉर्म स्पीशीज को ही जो रेयर किया जा सकता है क्योंकि वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस वैसी हैं. सो इन दैट केस यू हैव to be very careful and properly use the disinfectants so that you can protect your silk from the different types of the pest and the parasites. So what are disinfectants? These are actually certain chemicals which are used to prevent the different pathogens or the disease causing agents from the silkworm. Now different types of the disinfectants which are recommended. First is the formalin solution. So 10% of formalin solution is used for the fumigation. इसके आप जो है वो फॉर्मलिन की फ्यूम्स को यूज करते हैं और उसको आप जो विनाइल शीट के ऊपर डाल देंगे फ्यूम्स को, और विनाइल शीट से जो है वो आप जो भी अप्लायंसेस है उसको कवर कर देंगे. ठीक है, फिर वो उसके फ्यूम्स जो हैं, जो आपके फॉर्मलिन के फ्यूम्स हैं, विनाइल शीट के थ्रू सभी के सभी अप्लायंसेस में वो चले जाते हैं एंड यू शुड कवर द अप्लायंसेस फॉर एटलीस्ट फॉर 6 hours with that vinyl sheet which you have fumigated with the formalin. ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दैट इज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री एंड मेंटेन अ ह्यूमिडिटी ऑफ 70%, देन द एक्शन ऑफ फॉर्मलिन विल बी मोर इफेक्टिव. Now the next disinfectant is the bleaching powder. Bleaching powder in combination to the Senetec. Senetec मैंने अभी बताया आपको, it is the chlorine dioxide. तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन 2% bleaching powder और 2.5% Senetec का जो कॉम्बिनेशन होता है, इट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट. तो ये एक पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है जिसकी बहुत पंजेंट से स्मेल होती है. क्लोरीन आपको पता ही है, क्लोरीन की वैसे भी बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तो ये हम यूज करते हैं. ठीक है, सो वी यूज दिस डिसइंफेक्टेंट with the 2% bleaching powder and 0.3% सार्कलाइन सोल्यूशन. इसके साथ कई बार हम सार्कलाइन भी यूज कर लेते हैं और हम एकदम से उसको फर्स्ट
क्रॉप के कंप्लीट होने के बाद जो है, जब सेकंड क्रॉप हमने लेनी होती है, तो उससे हम जो है रेयरिंग हाउस को या जो हमारी बेड्स हैं उससे डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दी क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड, दिस सेनेटेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरीन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम सेनेटेक या क्लोरीन डाइऑक्साइड को कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं विद द ब्लीचिंग पाउडर एंड द साक लाइम इज ऑल्सो used, but in this case we are separately only using the chlorine dioxide or the Sanitec. Now this chlorine dioxide, it is used also in sock lime. Lime के साथ ही इसको यूज करते हैं and it is very effective in preventing the pathogens like the Nosema bombycis. Nosema bombycis is a protozoan parasite which causes the nosemiasis disease in the Bombyx mori. So to prevent this, we have to use the chlorine dioxide with the sock lime. And this chlorine dioxide, it is also effective against Bacillus thuringiensis, which causes the nuclear polyhedra and the conidia of the Beauveria bassiana. तो ये कुछ एक हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो हम यूज करेंगे, और ये जो हमारा क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ये सैनिटेक है, तो ये एक स्टेबल डिसइंफेक्टेंट्स है और इसका कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट या नॉन हैजार्डियस है ये हमारे सिल्क वॉर्म के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द साक लाइम। सिंपल साक लाइम जो लाइम है उसको भी हम यूज करते हैं एज अ बेड डिसइंफेक्टेंट। बेड डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमने रेयरिंग ट्रेस बनाई हुई हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी बुक शेल्फ होती हैं उस तरह से रेयरिंग ट्रेस बनाई हुई हैं, तो सबसे पहले उसके ऊपर हम बेड डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, उसके ऊपर हम लीव्स डालेंगे मलबरी के, और उन मलबरी लीव्स के ऊपर आप जो है वो सिल्क वॉर्म को रख देते हैं। ठीक है, सो दैट शुड बी फर्स्ट डिसइंफेक्टेड विद द बेड डिसइंफेक्टेंट। और यहाँ पे जो बेड डिसइंफेक्टेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज द साक लाइम। द एप्लीकेशन ऑफ द लाइम डस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ जो कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो दैट विल प्रोवाइड अ मोर हाइजीनिक कंडीशन टू द silk worms. Next, another bed disinfectant which we use is the Vijetha or Vijetha green or Ankush. ठीक है, तो ये कुछ एक फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं डिसइंफेक्टेंट्स के। दिस इज अंकुश। तो ये कुछ डिसइंफेक्टेंट्स भी हम यूज करते हैं विच आर यूज्ड एज द बेड डिसइंफेक्टेंट्स। एंड व्हाट वी डू, वी टेक दिस डिसइंफेक्टेंट इन अ थिन क्लॉथ एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी डस्ट देम ओवर दी सिल्क वॉर्म्स बेड। सिल्क वॉर्म बेड के ऊपर आप डाल देते हैं जब वो फर्स्ट स्टार्ट स्टेज में होते हैं, जिससे कि प्रॉपर डिसइंफेक्टेंस हो जाए। आपका जो एरिया है, जो आपके लीव्स भी आप इवन यूज कर रहे हैं, अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जो है फिर डिसइंफेक्टेंस के होने की वजह से लीव भी जो है, अगर उसमें कोई डिजीज भी है तो वो सिल्क वॉर्म को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द मस्कार्डाइन डिजीज। So muscardine disease is one of the disease which causes high mortality rate in the silkworm. Next is the RKO. Sometimes this RKO one word में इसको पूछ लेते हैं, तो RKO की फुल फॉर्म क्या है? रेशम कीट औषध। रेशम कीट औषध, it is also a bed disinfectant and it is also applied on the rearing trays. जो आपकी rearing trays है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे डिजीजेस से अपने सिल्क वॉर्म को बचा सकते हैं, सच एज द मस्कार्डाइन डिजीज, द ग्रासलेट डिजीज और द न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, अब ये काफी ज्यादा बढ़िया है यूज करने के लिए, क्योंकि ये जो है इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं है, ना ही एनिमल्स के ऊपर है और ना ही ह्यूमन बींग्स के ऊपर है। सो वी यूज अप्रोक्सीमेटली 7 kg ऑफ रेशम कीट औषध फॉर द 100 डिजीज फ्री लिंग। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स विच वी यूज। तो ये आपने थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next video, we will continue with the topic that is the silkworm rearing technology. So that's all for today. Thank you.